Hello bachcho, this is problem session with Nijir Tantre. Every day I upload problems on the YouTube channel Tantre Sir Physics classes, and every day I interact with the students, take their feedback and discuss the things. My sole motive is to prepare the students for national exam in physics. Let us start with this question. A particle moves in a circle and it starts with initial velocity v0 at t is equal to 0. Velocity is v0. Then there's a tangential acceleration, but it is retardation. There's a retardation, and a time comes at a particular time, centripetal acceleration is equal to tangential acceleration. Centripetal acceleration is equal to tangential acceleration. We have to find, no. Centripetal acceleration is always equal to tangential acceleration. I'm sorry. Centripetal acceleration is equal to tangential acceleration all the time. They're equal. We have to find what is the velocity as a function of time. We have to find this velocity as a function of time. But this tangential acceleration is basically retardation. It is not speeding up the particle, it is slowing down the particle. Retardation. It is retardation. Particle moves in a circle, it starts with initial velocity v0. There's a tangential retardation, right? We have to find velocity as a function of time, that is all. How it is velocity? I mean speed. How it is speed changed with time? The answer is v is equal to v0 1 plus v0 by rt. It's a good question. So see how I will start. This centripetal acceleration is v square by r, as you know. R is the radius. And tangential acceleration is rate of change of speed. Tangential acceleration is the rate of change of speed. When the speed changes, that is the tangential acceleration. Centripetal acceleration changes the direction. It does not change the speed, because centripetal acceleration or centripetal force is perpendicular to velocity. When it is perpendicular to velocity, the magnitude of velocity will not change due to the centripetal force or centripetal acceleration. What changes the speed? What changes the speed? Centripetal acceleration or centripetal force will not change the speed. Sorry, it will change the velocity, but it will not change the speed. The speed changes due to the tangential acceleration. If there is a tangential retardation, then speed will decrease. If there is a tangential acceleration which is in the direction of velocity, then speed will increase. So you have a formula for tangential acceleration minus dv by dt. Right? So this is the base equation जो दिया है वहाँ से. So it is v square dt is equal to minus dvr, cross multiply. Now it is again dv by v square, ये वाला dv by v square is equal to minus dt divided by r. इस r को यहाँ लाया और इस v square को यहाँ लाया. अब इंटीग्रेट कीजिए v0 से v तक. इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ वेलोसिटी एट एनी टाइम. और यहाँ इंटीग्रेट कीजिए 0 से t तक. ठीक. और ये होगा आगे जा कर के, ये जो v स्क्वायर है, इट इज़ v माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 अंडर व्हाट लिमिट्स v0 टू v. ये मैंने इंटीग्रेशन किया v स्क्वायर 1 बाई v स्क्वायर का. इट इज़ v0 टू v इज इक्वल टू माइनस d कैंसल्स विद दिस, इट इज़ माइनस 1 बाई r. फिलहाल ठीक है. अच्छा, तो इट विल be like this. Now it will be, ये -1 हुआ, इस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, लेकिन t यहाँ में भूल गया, t भी है. Okay, now
it is v minus 1 under limits v0 to v is equal to 1 by RT, क्योंकि ये माइनस इसके साथ ख़त्म होगा. इट इज़ 1 by v माइनस 1 by v0. ये सब्स्टिट्यूट करने से पहले v सब्स्टिट्यूट करो 1 by v को, फिर 1 by v0 इज इक्वल टू t by r. इट इज़ 1 by v इज इक्वल टू 1 by v0 प्लस 1 by r. ठीक, राइट. ये हो गया 1 by v इज इक्वल टू r यहाँ, v0 यहाँ, r v0. ठीक, अब v किसके बराबर, दैट इज़ r v0 डिवाइड बाई r प्लस v0. ये भी ठीक चलेगा, ये उल्टा कर दो. नाउ v इक्वल टू r को ऊपर भी डिवाइड करो, नीचे भी डिवाइड करो. लेकिन फिर से मैं कहीं कुछ भूल जाता हूँ, ये t भूल गया मैं. और t कहाँ, ये t है तो ये t होना चाहिए. r t यहाँ पर, तो ऊपर r को डिवाइड करो, दैट इज v0 कहाँ गलत हुआ, यहाँ से मैं फिर से शुरू करता हूँ. एक मिनट, ये मैं नया करता हूँ. आई एम सॉरी, जस्ट ए मिनट. तो ये फिलहाल ठीक चल रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे करें, 1 by v इज इक्वल टू 1 by v0 प्लस t by r. ठीक, इट इज़ 1 by v इज इक्वल टू t r प्लस v0 t डिवाइड बाई व्हाट, v0 r. फिर v इक्वल टू v0 r ऊपर ले लो, डिवाइड करो r प्लस v0 t, फिर v कर दो r को डिवाइड, ऊपर v0, नीचे r को यहाँ डिवाइड करो, हो गया 1 प्लस अब यहाँ डिवाइड करो तो v0 बाई r t. आंसर सेम एज दिस. ख़त्म. क्वेश्चन था, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, इट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी v0, it is a tangential retardation, means this speed will decrease, and tangential acceleration is equal to what? Tangential acceleration is equal to centripetal acceleration. We have to find what is the velocity as a function of time. अब जरा देखो, t को 0 कर दो, ये 0 हो गया, v is equal to v0. So that means initial velocity is v0. When you put t is equal to 0, you got the initial velocity. ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन. मेरे पास दो इक्वेशंस है, y इक्वल टू x बाई 2 एंड x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3. तो क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ढूंढना है मुझे एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए मुझे पहले वेलोसिटी तो पता चलना चाहिए. तो यहाँ मैं लिखूँगा y इक्वल टू x को सब्स्टिट्यूट करो एज ए फंक्शन ऑफ t, दैट इज t क्यूब बाई 3 इंटू 2 6 एंड x इज इक्वल टू t क्यूब बाई 3. फिलहाल ठीक चल रहा है. मैंने क्या किया, ओनली वन थिंग आई डिड, आई गॉट बोथ x एंड y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन हो गया, और ये तो हो गया 3 नीचे टी स्क्वायर बाई 6, वो हो गया टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, वो हो गया vx. ठीक, इज इक्वल टू दैट इज 3 टी स्क्वायर बाई 3, वो हो गया टी स्क्वायर. मुझे वेलोसिटी मिला इन द y डायरेक्शन और मुझे वेलोसिटी मिला इन x डायरेक्शन. अब इसका डिफरेंशिएशन करने से मुझे ay मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने से, दैट इज 2t बाई 2, दैट इज t. और इसका डिफरेंशिएशन करने से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा ax, तो वो हो गया 2t. अब जाकर मेरा जो एक्सेलरेशन है वो है ax 2t i x डायरेक्शन में प्लस t, ये वाला t j क्योंकि y डायरेक्शन में. अब t को सब्स्टिट्यूट करो आप 1 सेकेंड, दैट इज 2i
t को 1 सेकंड देने से 1 प्लस j आंसर. Simple question done in a simple possible way. Simple question done in a simple possible way. The question has a potential of being asked at JEE Mains or NEET. Question number 3. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 4i प्लस 4j और एक्सेलरेशन है हमारे पास -0.4i. Velocity after some time magnitude is equal to 5 meters per second. बताइए किस टाइम के बाद पार्टिकल का ये वेलोसिटी होगा. बस we have to find time interval in which particle velocity, the magnitude of particle velocity will become 5 meters per second. इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, नेगेटिव है. तो पहली बात यह है कि मुझे बताइए फाइनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड यू कैन यूज कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूलाज, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस काइनेमेटिक्स से. सो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म? दैट इज u प्लस a t. हमारे पास फॉर्मूला जो है. व्हाट इज v? चलो फिलहाल तो v. व्हाट इज u? 4i प्लस 4j प्लस एक्सेलरेशन दैट इज -0.4t, साथ में i. अब जाकर के वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका और इसका i कॉमन निकालो, दैट इज 4 - 0.4t i प्लस ये वाला 4j. अब सोचो जरा, अब क्या करोगे? यस, अब इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर ही कर दो मैग्नीट्यूड का, ताकि इसका स्क्वायर कर दूं ठीक तरह से, प्लस 4 का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर, जो आपको पता है कैसे क्यों करते हैं. तो दिस स्क्वायर इज 25, ये पता है, इज इक्वल टू 4 - 0.4t होल स्क्वायर प्लस 16. तो इसका ये है 16 में से 25 निकालो, दैट इज 9, दैट इज 4 - 0.4t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 4 - 0.4t इज इक्वल टू, इसको कर दो 3 क्योंकि रूट हो जाएगा, या प्लस -3 हो जाएगा. फिलहाल हम प्लस के लिए निकालेंगे, हमें माइनस के लिए भी निकालना है आंसर, हमें प्लस के लिए भी निकालना है. फिलहाल जब ये √9 होगा तो ये 3 हो गया, लेकिन -3 भी हो सकता है. चलो 0.4t इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, 1. t इज इक्वल टू 1 / 0.4, दैट इज 10/4, दैट इज 2.5 आंसर. सो टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स. सोचो जरा, इजी क्वेश्चन. देखो वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड दिया है. मैंने क्या किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, ऐसे कर दिया, सॉल्व करके फिर इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये आई कंपोनेंट्स कंबाइन किए, यहाँ टी भी साथ है, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया, इजली डन क्वेश्चन. अच्छा, y versus x प्रोजेक्टाइल मोशन, यू नो इट, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन. मुझे चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं दिखा रहा हूं. मुझे चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r एंड h, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट. इसमें चाहिए मुझे y, x में नहीं, x में नहीं. तो ये क्वेश्चन आया था, तो जरा देखो, हैव अ लुक. y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r. इसमें कोई शक नहीं, कोई भी शक नहीं है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है. अब जरा देखो, इंटरेस्टिंग चीज,
टेन थीटा को हटाओ, आपको पता है h इज इक्वल टू आर बाई 4 टेन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। रेशियो ऑफ वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज टेन थीटा बाई 4, तो h इज इक्वल टू आर बाई 4 टेन थीटा, वेल नोन इक्वेशन। तो अब टेन थीटा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू x, टेन थीटा इज व्हाट 4h बाई r, 1 माइनस एक्स बाई आर, ये वाला सिर्फ टेन थीटा को रिप्लेस किया, आंसर डन। ये तो आंसर था वहां पर भी, इक्वेशन को हमें h और r में लाना था बस। फिफ्थ क्वेश्चन, ये सोचो यहां पर है, वे लुक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक समझो एक रिवर है और ये रिवर, ये विड्थ है रिवर का, दिस इज द रिवर विड्थ, और ए स्विमर और ए बोट यहां से जा रहा है, इट एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, और वो एक्सेलरेशन 2t के बराबर होता है, और रिवर का जो वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, रिवर का वेलोसिटी x डायरेक्शन में है v0। बोट यहां एक्सेलरेट कर रहा है यूं इन द y डायरेक्शन, और रिवर का वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज v0। क्या होगा इस बोट का? इट बी ड्रिफ्टेड डाउनवर्ड्स, डाउन स्ट्रीम द रिवर, ठीक, और बोट का पाथ ये हो जाएगा। समझो, मुझे निकालना है व्हाट इज द पाथ, मतलब मुझे y और x का इक्वेशन निकालना है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द बोट, बोट का पाथ क्या है, एज सिंपल एज दैट। ये बोट एक्सेलरेट कर रहा है यूं, और वो एक्सेलरेशन 2t के बराबर है, और बोट का डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है दैट इज v0, यानी कि x डायरेक्शन में बोट जो ड्रिफ्ट हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, उस ड्रिफ्ट का वेलोसिटी v0 है, और नीचे कितना जाएगा वो आपको ये बताना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, y और x में रिलेशन फाइंड करना है, इसका पाथ फाइंड करना है, ये किस पाथ से जाएगा। चलो देखते हैं क्या करेंगे, हैव ए लुक। पहली बात यह है कि मुझे आप बताइए a इक्वल 2t, ठीक है, मगर a क्या है? वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मगर विच वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है? देख लो इधर, ये किस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है? dvy by dt is equal to 2t. It is rate of change of y component of velocity because the acceleration is in the y direction. ठीक, चलो अब मैं vy निकालता हूं, that is 2t dt d dvy is equal to, ये मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, अब इंटीग्रेट करूंगा, और ये vy जो है ये मुझे मिला 2 टाइम्स t स्क्वायर बाई 2, हो गया t स्क्वायर। मैंने vy निकाला, अब यहां vy से मैं निकालना चाहता हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बोट। तो वो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं जरा बताइए। इट इज vy इज dy by dt, that is equal to t square, fine. This vy is dy by dt, that is t square. What is dy? That is t square dt. Integrate करो, that is y is equal to t cube by 3. ये मुझे y मिला, t क्यूब बाई 3। लेकिन आपको मुझे बताना है, नाउ इट इज यू हु विल मतलब आंसर में व्हाट इज x, ये बताना पड़ेगा आपको। हाउ मच डाउन द स्ट्रीम इट हैज गॉन, अगर ये यहां पर बोट आया तो कितना आगे चला गया, ये बताइए आप, आगे कितना गया। शाबाश, इन गिवन टाइम टी आगे कितना जाएगा। x डिस्प्लेसमेंट या x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे आप? शाबाश। अच्छा मैं लिखता हूं कुछ v0, अब और क्या लिखूं x कोऑर्डिनेट के लिए t, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी,
it will go down the stream, and in time t the x will be v0 t, because this motion and this motion they are independent of each other. जो इस v0 को करना है, जो इस v0 को काम करना है, वो vy से नहीं पूछेगा. जो vy को काम करना है वो v0 से नहीं पूछेगा. v0 को जो टाइम t में करना है वो यही v0 t करेगा, x कोऑर्डिनेट बनाएगा, और y कोऑर्डिनेट बनाएगा vy वेलोसिटी. ठीक, तो आपको सीधे लिखना चाहिए था v0 t. ओके, नाउ y इज t क्यूब बाई 3. अब t क्यूब को वैल्यू दे दो यहाँ, दैट इज x क्यूब बाई v0 क्यूब. 3 तो लिखना पड़ेगा इधर, सिर्फ t को वैल्यू दिया. आंसर y इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3v0 क्यूब. आंसर. This is the path of the boat which is accelerating upwards but deflecting down the stream like this. ठीक? Yes, this is the sixth question. F is equal to minus kx. This is a force. This force you usually encounter in most of the cases. Mostly it is encountered in simple harmonic motions. F is equal to minus kx. The force acting on an object and that object oscillates back and forth. बहुत सारी जगहों पर ऐसा इक्वेशन आता रहता है. मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन यह है कि जिस ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स एक्ट करता है, मुझे उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी चाहिए. व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी of the object, and prove और साबित करो that total energy is constant. That total energy is constant. ये मैंने क्वेश्चन बनाया इसका. मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स एक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और साथ में यह भी साबित करना है कि वो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, और लगे हाथ ये भी साबित हो जाएगा कि इट्स ए कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक, चलो, ये जो F है अगर मैं इसको लिखूंगा m dv बाई dt, गलत है क्या? नहीं गलत है. ठीक है, ये ठीक है. इसका F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस dx. अच्छा, अब जरा देखो, m dv बाई dt. आप कहेंगे नहीं नहीं आपने dv बाई dx लिखा, ये तो dt है, तो मैं करूंगा dx बाई dt. टू मिस्टेक्स मेक इट राइट. दो चीजें करने से पूरा ठीक चीज हो जाता है. dx dx कैंसिल, dv बाई dt. अच्छा, नाउ dx बाई dt इज अगेन वेलोसिटी, और dx को मैं यहां ले जाऊंगा माइनस k dx, kx dx. इस dx को यहां लाया. इट इज m, इट इज dv by dx v, इट इज dv here, इट इज dx there. अच्छा, नाउ इट इज m v dv. ऐसे किया मैंने, v पहले लिखा. इट इज माइनस kx dx. अब इंटीग्रेट करो. ठीक, तो ये हो गया m, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ये होगा माइनस के, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2. लेकिन ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है. डोंट फॉरगेट दैट इट इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रल. व्हाई यू आर नॉट गिविंग द लिमिट्स? देख लो जरा. आर यू गिविंग द लिमिट्स? नो. सो इट्स एन इनडेफिनिट इंटीग्रल, सो यू हैव टू ऐड ए कांस्टेंट c. ठीक, अब इसको यहां ले आइए. 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 k x स्क्वायर इज इक्वल टू c. आंसर to all the questions, it is kinetic energy, it is plus another energy, potential energy is equal to c constant. पहले तो हमने एनर्जी निकाला और फिर ये भी साबित किया इट्स अ कांस्टेंट, और लगे हाथ इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज f इज इक्वल टू माइनस के एक्स. खत्म, फिनिश्ड. यह है हमारा और एक क्वेश्चन. v इज इक्वल टू ai प्लस bxj. ये हमारा क्वेश्चन है.
मुझे ट्रेजेक्ट्री निकालना है पार्टिकल का, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। एक तो ट्रेजेक्ट्री निकालना है, लेकिन बाय दिस टाइम यू मस्ट नो व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इज ए इक्वेशन बिटवीन y एंड x, और जो y और x का जो ग्राफ है वो भी ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। y और x का इक्वेशन भी ट्रेजेक्ट्री है, y और x का ग्राफ भी ट्रेजेक्ट्री है। और अगर आपको है कुछ नॉलेज इसका, रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री भी निकालेंगे, रेडियस भी ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उस ट्रेजेक्ट्री का रेडियस क्या है, उस ट्रेजेक्ट्री जो होगा उसका रेडियस क्या है, मतलब वो उसका रेडियस चेंज होता होगा। कोई भी ट्रेजेक्ट्री हो, यहां रेडियस कुछ होगा, यहां कुछ होगा, वो चेंज होता होगा, लेकिन हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले मुझे बताइए व्हाट इज वी एक्स, इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दैट इज ए। व्हाट इज वी वाई, दैट इज बी एक्स। फिलहाल तो हो गया इजी, ये वी एक्स और ये वी वाई, इसका y कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट। अब ये तो हो गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए, और ये हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स। फिलहाल ठीक चल रहा है। अब मैं इस dy बाई डी टी को इस dx बाई डी टी से डिवाइड करूंगा इसको, तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि dt dt कैंसिल होगा। तो आगे जाकर ये हो जाएगा bx बाई ए, ऐसे दिस bx बाई ए। तो आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी वाई इज इक्वल टू बी एक्स डी एक्स। ठीक फिलहाल चल रहा है। हाँ, तो अब इंटीग्रेट करो, तो ये इंटीग्रेशन से क्या होगा, ये तो a ये खत्म होगा डी और इंटीग्रल, ये हुआ ए वाई इज इक्वल टू, शाबाश, b टाइम्स ये वाला b एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हुआ y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2। आंसर ये है आंसर, इट इज द पाथ। जरा इस पाथ का रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, इस पाथ का रेडियस निकालने की कोशिश करो आप जरा। इट इज y इक्वल टू b बाई 2a एक्स स्क्वायर। रेडियस होता है पाथ का, दैट इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर लॉन्ग ब्रैकेट टोटल पावर 3 बाई 2 होल डिवाइड बाय d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यह है फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का। यह फॉर्मूला याद रखना चाहिए, यह इस साल नीट में आया था ऐसा क्वेश्चन। अगर याद नहीं तो ये क्वेश्चन जो ऐसे वो दिया था, वो फ्लूइड का पाथ, वो फ्लूइड का पाथ का रेडियस निकालना था, तो आपको यही फॉर्मूला अगर याद होता तो ये क्वेश्चन वाज डन। द क्वेश्चन वाज डन। चलो हम इसका रेडियस निकाल कर देंगे आपको, अच्छी तरह से देख लो। पहले मुझे dy बाई डी एक्स यहां से निकाल कर दे दो, dy बाई डी एक्स दैट इज b बाई 2a इंटू 2x, खत्म। ये b बाई ए एक्स, dy बाई डी एक्स निकला हमें b बाई 2a कॉन्स्टेंट, 2x का डिफरेंशिएशन, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 गेट्स कैंसल, इट इज b बाई एक्स। व्हाट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज b बाई ए इंटू एक्स का 1। तो अब जाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, 1 प्लस व्हाट इज dy बाई डी एक्स, दैट इज b एक्स बाई ए उसका स्क्वायर होल रेज टू 3 बाई 2 होल डिवाइड बाय
What is d2y by dx square? Double differentiation of dy by dx, that is b by a. b डिवाइड बाय a, यहां पर वो यहां हो जाएगा. आंसर हो गया. दिस इज द आंसर. ठीक. वन मोर क्वेश्चन. ये है एक L लेंथ हियर एंड दिस इज ऑल्सो L लेंथ. यहां से आप प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हो V0 से ताकि वो I से इसको हिट करे. यहां पर हमें देखना है कि what should be V0 at an angle theta so that it hits it here. ये L लेंथ का बेस है, ये L लेंथ का हाइट है. किस वेलोसिटी से मैं ये लॉन्च करूंगा एट एन एंगल थीटा सो दैट इट हिट्स द टॉप ऑफ द लैडर. अगर सीधे भेज दोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, नीचे चला जाएगा. आपने किसी वेलोसिटी से इसको लॉन्च करना पड़ेगा. ठीक. ये थीटा निकालना पड़ेगा. चलो, डू यू नो दिस इक्वेशन? Projectile equation, is it? Yes. Look at this. खूब देख लो इससे. ये projectile equation है. It is good for every projectile. There is no exception. अब ये y क्या है? जब ये यहां हिट हुआ, ये YL है. अब ये x क्या है? यहां से यहां तक, वो भी L है, tan थीटा -1/2 g. What is x? वो L स्क्वायर V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. फिलहाल चल रहा है ये L और ये L और एक L खत्म. तो अब आप मुझे बताइए, अब दूसरा मैं क्या लिखूं? दूसरा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू यस tan थीटा माइनस GL बाय 2V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ये इक्वेशन. अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, GL बाय 2V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊं तो tan थीटा -1 होगा. ठीक. GL बाय 2V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, GL बाय 2 times V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यस tan थीटा -1, tan थीटा -1. ये मुझे इक्वेशन मिला. अब यहां से उल्टा कर दो और वहां से भी उल्टा हो जाएगा. इट इज 2V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय GL इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा -1. इट इज V0 स्क्वायर इज इक्वल टू GL उधर, 2 cos थीटा नीचे, 2 cos स्क्वायर थीटा नीचे, ये वाला नीचे, और tan थीटा -1 नीचे ही. तो ये स्क्वायर जब खत्म होगा तो V0 इज इक्वल टू रूट ऑफ GL डिवाइड बाय 2 times tan थीटा -1. cos को आप बाहर रख सकते हैं 1 by cos थीटा, क्योंकि वो स्क्वायर है. cos बाहर, 2 tan थीटा -1 GL. This is the answer. So ये देखो यहां पर, यहां देखिए ये L है, ये भी L है. तो किस वेलोसिटी से इसको ले जाएंगे ताकि ये पड़ जाए इधर? दैट इज इट. वेलोसिटी निकालना था एट एन एंगल ऑफ थीटा. तो ये अगर आप 45 पर डालोगे तो क्या होगा? क्या यहां आएगा? नहीं. तो अगर थीटा को 45 रखोगे तो ये तो 1 -1 0 होगा. तो दैट मीन्स वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इन्फिनिट होना चाहिए ताकि अगर सीधे चलाओगे तो यहां आ जाएगा. अगर 45 पर चलाओगे तब यहां आ जाएगा. ओनली इफ द वेलोसिटी इन्फिनिटी, which is not possible. So if you shoot it with a terrible speed, then it can hit here. Magar see, you can't have a velocity which is infinite.
इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 इज नॉट पॉसिबल. थीटा इज ग्रेटर देन 45 इज पॉसिबल. थीटा ग्रेटर देन 45 इज पॉसिबल. इस एंगल पर पॉसिबल कभी नहीं है कि दिस पार्टिकल विल रीच ओवर हियर. तो आपको ज्यादा एंगल इससे होना चाहिए. फिर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी कैसे एडजस्ट करोगे सो दैट इट रीच ओवर हियर. So these were some questions which I have already solved for you. Continue to watch my lectures. These questions, if done regularly, on a regular basis, watch on the regular basis, certainly over a period of time, maybe over 6 months, 7 months, you will prepare yourself for nice, good exams at the national level. Thank you.